جنگل میں رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ سبھی پکشی روزانہ ہی بازار جاتے اور پھر عید کی شاپنگ کیا کرتے تھے۔ گڑیا اپنے دوست جگو کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گڑیا، کل میرے ممی پاپا میرے لیے 3 سوٹ لے کر آئے اور پھر 3 جوتے بھی میچنگ کے۔ جگو، ایک ساتھ اتنے کپڑے اور جوتوں کا کیا کرو گے تم؟ ارے گڑیا، تم بھی ایک دم پاگل ہو۔ عید 3 دن ہوتی ہے، میں ہر نئے دن میں نیا سوٹ پہنوں گا۔ اگر جگو، ابھی تک میری مما نے میرا ایک سوٹ بھی نہیں لیا، تمہاری مما نے اتنے سارے کیسے لے لیے؟ ہاں، میری مما بتا رہی تھی آپ لوگ غریب ہو نا، ہم کچھ زکوٰۃ اور فطرانے کے پیسے دیں گے جس سے تم لوگ کپڑے خریدو گے۔ ابھی ہم نے زکوٰۃ نکالی نہیں ہے نا۔ جگو، یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ ارے زیادہ تو نہیں پتا، پر ممی پاپا کہہ رہے تھے غریبوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نام پر، اس سے ہمارا مال بڑھتا ہے اور غریب غریب ہی رہتا ہے۔ جگو، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ پہلی بات، ہم غریب نہیں ہیں، دوسری بات، ہم غریب رہیں گے بھی نہیں، بلکہ میں بہت زیادہ پڑھوں گی اور اپنے ممی پاپا کو امیر کر دوں گی۔ جاؤ جاؤ، بلی کے خواب چیچڑے، ارے تم لوگ کبھی بھی امیر نہیں ہوگے۔ جگو کی جلی کٹی باتیں سن کر گڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گڑیا گھر جاتی ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ مما، مما، وہ جگو بہت بدتمیز ہے، بہت زیادہ۔ ارے کیا ہوا میری بیٹی گڑیا؟ ایسا کیا کہہ دیا ہے آپ کو جگو نے؟ آپ کی تو جگو سے اچھی دوستی ہے نا؟ پیاری امی جان، جگو کہتا ہے کہ اس کی مما اس کے لیے 3 سوٹ لے کر آئی ہے اور ساتھ میں 3 جوتے بھی۔ میں نے کہا میری مما تو نہیں لائی۔ ارے بیٹی گڑیا، ابھی عید کے آنے میں دن باقی ہے، میں لے کر آؤں گی نا بیٹی گڑیا کے پیارے پیارے کپڑے۔ اگر امی جان دیکھیے تو صحیح، جگو کہتا ہے کہ ہم کپڑے تب لیں گے جب وہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے دیں گے، فطرانے کے پیسے دیں گے۔ یہ بات تو بہت غلط ہے، جگو نے غلط کیا ہے۔ ہم کسی کی زکوٰۃ اور فطرانے کے پیسوں سے نہیں، بلکہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہے، میں کام کر سکتی ہوں۔ بیٹے، زکوٰۃ ان پر ہوتی ہے جو کام نہ کر سکتے ہوں، بہت زیادہ غریب ہوں، ہم تو کام کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم اپنی محنت کے پیسوں سے کپڑے لیں گے۔ مما، میں نے بھی جگو کو یہی بات کی تھی، وہ کہہ رہا تھا بلی کے خواب چیچڑے۔ ارے بیٹی، کتنی بار کہا ہے آپ کو کہ آپ جگو کے ساتھ مت کھیلا کرو، وہ امیر پکشی کا بچہ ہے، کچھ سے کچھ بول دیتا ہے۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے۔ گڑیا ہر نئے دن اپنے عید کے کپڑوں کا انتظار کر رہی تھی۔ مما مما، وہ اس دن آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آپ لوگ زکوٰۃ اور فطرانہ دو گے چڑیا آنٹی کو، تو وہ عید کی شاپنگ کر لے گی۔ جگو بیٹا، تم کیوں سوچ رہے ہو اس بارے میں؟ زکوٰۃ تو تمہارے پاپا نے دینی ہے۔ اگر مما، میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس دن گڑیا کو بولا تھا کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے دیں گے اور تم لوگ کپڑے لے لینا۔ واہ واہ، میرا بیٹا جگو کتنا سیانا ہے، سب کو اس کی اوقات دکھا ہی دیتا ہے۔ اسی سمے کالو کوا بھی اپنے گھر میں آ جاتا ہے۔ ارے گوری، کیا کر دیا ہمارے جگو نے؟ کوئی نیا کام کیا ہے کیا؟ ہاں ہاں، وہ جو تم دیتے ہو چھوٹی چڑیا کو ہر عید پہ پیسے، زکوٰۃ اور فطرانے والے۔ گوری، غلط بات ہے، میں اپنی بہن چڑیا کو عید ہی دیتا ہوں، نہ زکوٰۃ نہ فطرانہ۔ ہاں ہاں، سب سمجھتی ہوں، زکوٰۃ اور فطرانے کو عید بنا کر دے دیتے ہو۔ ارے جگو وہی تو کہہ کر آیا ہے، بھئی ہم زکوٰۃ اور فطرانہ دیں گے تب نہ لیں گے یہ اپنے عید کے کپڑے۔ گوری، یہ غلط بات کیوں کرتی ہو؟ میرا ثواب کیوں خراب کر دیتی ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہی نہیں ہوتا ہوگا جو میں نے تم لوگوں کو تمیز ہی نہیں سکھائی۔ اس چھوٹی چڑیا کے پیچھے تم مجھے تمیز سکھاؤ گے؟ بتاؤ۔ ارے کالو کہیں کے، اپنا بیٹا لے کر اس گھر سے چلی جاؤں گی میں۔ ارے چپ کر جاؤ، اگر دوبارہ میری بھانجی گڑیا اور میری بہن رانو کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کالو کوا ایک بہت ہی اچھا پکشی تھا، وہ اپنی بہن رانو کے گھر جاتا ہے۔ رانو بہن، میں نے سنا ہے جگو نے غلط حرکت کی ہے، میری پیاری بھانجی گڑیا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ارے کوے بھیا، کوئی بات نہیں، جگو بچہ ہے نا، بڑا ہو کر سمجھ جائے گا۔ دیکھو رانو،
कभी भी ये मत समझना कि मैं तुम्हें फितराना या ज़कात के पैसे देता हूँ। नहीं नहीं, बल्कि मैं जो तुम्हें पैसे देता हूँ वो अपनी बहन को ईदी समझ कर देता हूँ। कभी भैया, मैं सब जानती हूँ, दुनिया वाले चाहे जो भी बातें बनाए, मगर हम तो बहन भाई हैं ना, हमें ही एक दूसरे को समझना चाहिए। रानो बहन, ये लो पैसे। इस बार ईदी आपको जल्दी दे रहा हूँ। इस ईदी से मेरी भाजी गुड़िया के खूबसूरत कपड़े लेकर आओ, और फिर हाँ, अपने भी लाना, नए जूते भी लेकर आना। बाजार की दुकान में कह दूंगा कि तुमको सस्ता कपड़ा देंगे। कभी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रानो, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, बल्कि इफ्तार करके ही जाइएगा। अच्छा ठीक है, अगर मेरी बहन इतने प्यार से इफ्तार कराएगी तो मैं क्यों नहीं करूँगा। शाम हो जाती है। शाम के समय गोरी ने भी दस्तरखान सजाया था और फिर कालू कौवा तो रानो के घर में इफ्तारी कर रहा था। जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा उस छोटी चिड़िया के घर हैं, जाकर बुला कर लाओ, अजान होने वाली है। अरे रोजा इफ्तार करें हम। जग्गू रानो के घर जाता है। पापा पापा, जल्दी से घर चलो, मम्मा बुला रही हैं। अरे बेटा जग्गू, आज हम लोग इफ्तारी यहीं पर करेंगे। तुम तो आ गए, अब जल्दी से बुला कर लाओ अपनी मम्मा को। इफ्तार हमारी बहन रानो ने बनाया है। हाँ जग्गू बेटा, जल्दी से जाओ, गौरी भाभी को बुला कर लाओ। उनको बोलो कि रानो आंटी बुला रही हैं। जग्गू अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा मम्मा, वहाँ पर सभी इकट्ठे हैं, आपको बुला रहे हैं। पता है, रानो आंटी ने बोला गौरी भाभी को बुला कर लाओ। जग्गू बेटा, हम लोग जबान के कितने कड़वे हैं, जितनी भी बेइज्जती कर लो, रानो फिर भी मुझे गौरी भाभी कहती है, हर खुशी में शरीक करती है। चलो बेटा, हम जल्दी से जाते हैं, रोजा इफ्तार हम रानो बहन के घर ही करेंगे। गौरी अपने बेटे जग्गू को लेकर रानो के घर जाती है। रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इफ्तारी पर बुलाया। अरे गौरी भाभी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैंने अपने भाई के परिवार को बुलाया है। हाँ रानो, तुम तो कभी फर्क नहीं करती, मगर फर्क मुझसे ही हो जाता है। न जाने मेरा दिल इतना सख्त क्यों है। अरे कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है। अरे गौरी भाभी, दिल छोटा मत करे। वो अजान भी आने लगी, जल्दी से इफ्तार करते हैं। फिर वो सभी मिलकर खुशी खुशी अपना इफ्तार करते हैं। इसी तरह वो एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं और खूब प्यार मोहब्बत बांटते हैं। जंगल के सभी पक्षी अपना अपना पक्का घर बनाने की कोशिश में थे। वो धीरे धीरे अपनी लकड़ियां ला रहे थे और अपना पक्का घर बना रहे थे। कोलू, कोलू पति जी, जल्दी जल्दी अपनी लकड़ियां इकट्ठी करें और अपना पक्का घर बनाए। पता भी है, उस छोटी चिड़िया ने घर नहीं बनाया अपना पक्का। गोरी, फिर तो मैं घर बनाऊंगा, लाजमी बनाऊंगा। वो चों चों करती आएगी बारिश में। क्या कौवे भैया, बचा लो कौवे भैया। हाँ हाँ, फिर हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। अरे उठा उठा के फेंकेंगे उस छोटी चिड़िया को। ऐसे गोरी और कालू भी अपना पक्का घर बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहे थे। गोरी बहन, क्या आपने अपना दाना इकट्ठा कर लिया? छोटी चिड़िया, पहले घर तो बनाए, सर छुपाने की जगह होगी, तभी कुछ न कुछ करेंगे हम। अरे वाह, आप लोग तो बहुत मेहनती हो गए, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, घर बना लीजिए, फिर दाना भी इकट्ठा कर लेना। वैसे रोनो, तुमने अभी तक अपना पक्का घर क्यों नहीं बनाया? कभी भैया, पक्का घर भी बना लूंगी। मेरा मन कर रहा था कि सबसे पहले मैं दाना इकट्ठा कर लूं। हाँ हाँ, तुम दाना इकट्ठा कर लोगी, फिर किसी को लालच दोगी कि 2 दाने ले लो, मुझे घर में एक रात गुजारने दो। गौरी, मैं छोटी चिड़िया जरूर हूँ, मगर भी कारण नहीं हूँ। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। रानो ने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था और गौरी और कालू ने अपना पक्का घर बना लिया था। लगता है आज मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज बारिश होगी। समझ नहीं आ रहा कि आसमान तले रात कैसे गुजारूंगी मैं। रानो बहुत परेशान थी। गरजते बादल, चमकती बिजली उसके दिल पर जैसे नाच रही हो। परेशानी में रानो चिड़िया अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते, तोते भैया, मेरी बात सुने। रानो, क्या हुआ, जल्दी बताओ, बारिश का मौसम शुरू होने लगा है, मुझे जल्दी घर जाना है अपने।
तोते भैया, आपको किस बात की चिंता? हरियाली ने दाना इकट्ठा किया और आपने अपना घर बनाया, बस हो गया आपका काम। हाँ रानो बहन, हर कोई तुम्हारी तरह किस्मत का बुरा नहीं होता कि जिसका पति शादी के दूसरे दिन ही मर गया हो। तोते, गलत बात है, इसमें मेरी कोई बदकिस्मती नहीं है। जो हुआ ऊपर वाले ने किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तभी बाहर हरियाली तोती भी आ जाती है। अरे जाओ जाओ, मेरे पति के पीछे क्यों पड़ गई हो? अपने पति का सर लिया है, लगता है अब मेरे पति पे नजरें हैं तुम्हारी। बहुत गलत बात की है आपने हरियाली। मैंने अपने पति की जान नहीं ली और आपके पति की जान क्यों लूंगी मैं? रानो चिड़िया निराश होकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। नहीं मांगूंगी, आइंदा किसी से कोई मदद नहीं मांगूंगी। अभी तो मैंने मदद का नाम तक नहीं लिया था, उन्होंने मुझे इतना बेइज्जत कर दिया। रात हो जाती है और फिर बहुत तेज बारिश आना शुरू हो जाती है। रानो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कोलू, कोलू पति जी, मुझे इतनी भूख लग रही है, घर में केवल एक चने का दाना भी नहीं है। गोरी, हमने गलत किया, तुम दाना ढूंढ लेती, मैं घर बना लेता, बस हम दोनों ही घर बनाने में लगे रहे। कोलू, वैसे एक उपाय है मेरे पास। हाँ हाँ, बोलो बोलो, भूख के मारे मैं निढाल होता जा रहा हूँ। आपको पता है उसे छोटी चिड़िया ने कितना सारा दाना इकट्ठा किया हुआ था? हाँ, वो हमें थोड़ी ना देगी अपने दानों की बोरी। कोलू, पर देखे कितनी बारिश है, वो बेचारी भी कितनी मुसीबत में होगी। ऐसा करते हैं, रानो को अपने घर रहने की इजाजत देते हैं और फिर उसके बदले में दाना लेंगे उससे। इस बात पर कालू कौवा मान जाता है और वो सीधा रानो चिड़िया को लेने उसकी घोंसले में जाता है। रानो, मेरी सुंदर बहन रानो, चलो चलो मेरे साथ चलो, देखो कितना भीग रही हो, चलो मेरे घोंसले में आराम से लेट जाओ। कवि भैया, आप कैसे आ गए मुझे लेने के लिए? गोरी बहुत गुस्सा होगी, मैं नहीं चलूंगी आपके साथ। और तुम्हारी भाभी गोरी ने ही कहा है कि रानो को ले आओ, हमारे पास दाना नहीं, उसके पास घर नहीं, एक दूसरे की मदद कर लेते हैं हम। मगर कवि भैया, दाना तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, मैंने छोटा सा दाना ही इकट्ठा किया है। और हमने भी छोटा सा घर बनाया है, जब हम जगह दे रहे हैं तो फिर तुम्हें दाना देने में क्या मसला है? कवि भैया, मैं बारिश में भीगते हुए तो रह लूंगी, मगर दाने के बिना नहीं। दाना मेरा 10 दिन का इकट्ठा किया हुआ है। ये बात सुनकर कालू को बहुत गुस्सा आ जाता है। कालू कौवा रानो को घोंसले समेत उठाकर एक नदी के पास जाता है। रानो का घोंसला नदी में बहा देता है। कवि, कवि, ये तो अच्छा नहीं कर रहे, बचाओ, मेरा घोंसला बहने से बचाओ, ना जाने मैं कहाँ जाकर गिरूंगी। कालू कौवा अपने घर वापस आ जाता है। वाह वाह कोलू जी, देखो हमारे पास दाना भी आ गया और चिड़िया को भी नहीं रखना पड़ा। बड़ी अच्छी अक्ल का मुजाहरा किया है तुमने। हाँ हाँ, एक तो घर में रहने की हमने ऑफर दी, आगे से बड़ी बन रही थी, उठाकर मैंने पानी में फेंक दिया उसका घोंसला। कोलू पति जी, चलो चलो, अब मजे मजे से दाना खाते हैं हम लोग। पानी के साथ बहता हुआ रानो का घोंसला दूसरे बहुत ही अच्छे और सुंदर जंगल में जाकर रुक जाता है। बच गई, जिंदा तो बच गई। मुझे लग रहा था उस कालू की वजह से शायद मैं जिंदा भी ना बच सकूं। रानो जैसे ही जंगल में आगे जाती है, उसे हर तरफ फलों वाले पेड़ और खूबसूरत से घोंसले नजर आते हैं। तभी रानो के सामने एक पक्षी आता है। लगता है आप इस जंगल में नई आई हो। हाँ, मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा बरसात वाला जंगल, और मेरे दोस्तों ने मुझे पानी में फेंक दिया था। बिल्कुल भी कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ, इनमें से कोई भी घोंसला पसंद करो और फिर रहो यहाँ पर आराम से। अरे मुझे तो लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। कालू कवि ने बुरा लाग करना चाहा, मगर मेरे साथ तो अच्छा ही हो गया। उधर गोरी और कालू वाले जंगल में भूखा चील भटक रहा था, उसको भी कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अभी चाहती हूँ इन कौवों को ही खा लेती हूँ मैं। कवि आराम से रानो का दिया हुआ दाना खाते और फिर मजे की नींद ले लेते थे। कवि दाना खाकर सोए हुए थे कि चील उनके घर के अंदर आ जाता है। लगता है पेट भर के सो रहे हैं ये कौवे, मेरा पेट खाली,
اور یہ پھر کے سوئے، ایسا تو انہیں نہیں دوں گی میں۔ وہ چیل منٹوں میں پہلے گوری کو کھاتی ہے اور پھر بعد میں کالو کوے کو کھا جاتی ہے۔ دانا کھا کر اتنا نشہ چڑھا تھا ان پر کہ ان کو اس نیند میں اپنا مانس نوچتا ہوا بھی کوئی نہ دکھائی